Okay. So in yesterday's class, we have learned about the income from house property, its prerequisites, and we have also discussed about how to determine GAV. And when we were discussing about GAV, we have discussed three cases up till now. In case one, we have take the actual rent is equal to annual rent. In case 2, we have taken actual rent less than the annual rent, and the reason is the unrealized rent. Then, case 3, we have taken actual rent less than annual rent, and the reason was loss of vacancy. Now, today we have to cover the fourth case. In case 4, we say actual rent is lower than the annual rent. Actual rent received is lower than the annual rent. I can write here, it will make more sense. Actual rent received. But here we say that the reason of actual rent received being less than this is vacancy as well as unrealized rent. So now how we are going to deal with this particular situation? So we need to learn, because in most of the cases and when we are doing the practical question, so this particular situation we get. So here we go. The first three steps remains the same. Step 1 remains the same, that compare the municipal value and fair rental value and take the higher of the two. Step 2 is the result of step 1 is to be compared with the standard rate, and the lower of the two shall be taken, right? And this lower value will become the ERV, which is known as the expected rental value, right? Now, further, when there is unrealized rent and loss of vacancy both, then we have to take actual annual rent माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. और अनरियलाइज्ड रेंट की हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी कि वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हमारे पास जो है उसमें उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं. तो एनुअल रेंट में से हमने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप 4 will be that we have to compare ERV and result of step 3. रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 कि जो एक्चुअल एनुअल रेंट में से हमने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया तो उसका आपका जो रिजल्ट आया, से इफ वी पुट इट एज अ स्टार फिगर, सो वी हैव टू कंपेयर द ERV and the star figure. Now in this case we have to take higher of the two. Select higher of the two. अगर ERV ज़्यादा है तो ERV ले लेंगे, और अगर आपका एनुअल रेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ज़्यादा है तो वो ले लेंगे. देन स्टेप 5 would be deduct the loss of vacancy from the result of step 4. Deduct the loss of vacancy from the result of step 4. ठीक है. सो अगर इसको हम दूसरे फॉर्मेट में अगर हम डिस्कस करें तो वी कैन टेक इट एज द म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर कर लिया और हायर ऑफ द टू ले लिया, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लिया तो लोअर ऑफ द टू ले लिया. इसमें आपका आ गया दिस लोअर वैल्यू विल बिकम द ERV. तो इस स्टेप में हमने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है एनुअल रेंट में से हमने सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया, तो ये जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ गया ये आ गया. देन वी कंपेयर दीज टू एंड वी हैव सिलेक्टेड द हायर वैल्यू, और जो भी हायर वैल्यू हुई उसमें से हमने माइनस कर दिया लॉस ऑफ वैकेंसी
तो हमारे पास इस केस के अंदर जीएवी आ गई, जहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों के दोनों उसमें क्वेश्चन में हमारे एग्जिस्ट करते हैं. I hope up till this point the concept is clear to all of you. Let's discuss one question or illustrations on this as well. Just try to write or try to fix this particular formula in your mind. Yes. Now let's discuss. I hope this particular sheet is clear to all of you. Fine. Understood this particular step? Yes, ma'am. Okay. So now let's move further. Let's do it with the help of the example. Let's see that there is municipal value of the particular house is 1,12,000. Then fair rental value is given 1,17,000. Standard rent, I'm not writing the full terms, I'm just using it, but in the exam you need to write the full terms. You should not write MV, FRV or SR. You need to write the complete terms. 1,15,000 is standard rent. Then annual rent, that is being means on which the particular house has been let out, is 1,21,000. Then there is given the unrealized rent 50,000, and loss of vacancy 10,000. Now, with the given formula or the given steps, can we do the calculation and we find out the GAV in this particular case? We have to calculate the GAV. So let's do it this way. Out of the municipal value and fair rental value, we have to take the higher value. This one higher value is to be compared with the standard rent. Then we will get the ERV. So out of these two, lower value will become, so 1,15,000 will become the ERV. Right? Now, as per this step where the unrealized rent and loss of vacancy both are given, so we have to find out the annual actual rent received by calculating annual rent minus unrealized rent. So annual rent is given 1,21,000 and unrealized rent is given 50,000. Can anyone tell me the figure after deducting 50,000? Ma'am, 71,000. Yeah, 71,000. So if we go to this particular step and we see, so we have seen that we have to calculate, we have taken municipal value and fair rental value, higher value. We have compared the higher value with the standard rent. We have taken the lower value. We got the ERV. Then we have to calculate annual rent minus unrealized rent and ERV, and this value annual rent minus unrealized rent will be compared. So if we will compare 1,15,000 and 17,000. So we have to take the higher of the two, right? So we have to select the higher of the two. So if we select higher of the two, so higher value is 1,15,000, right? So from this particular value, we have to reduce the loss of vacancy. So loss of vacancy is given 10,000. So in this case, 1,15,000 higher value will be taken. Out of this, 10,000 is deducted. So 1,05,000 will become our GAV in this particular case, right? So again, if you see with this formula, municipal value, fair rental value, higher of the two, compared with the standard rent, lower of the two, which will become ERV.
ERV is to be compared with annual rent minus unrealized rent. So this actual rent received after the deduction of unrealized rent, these two values will be compared and the higher value will be taken. From the higher value which is selected, loss of vacancy will be reduced and we will arrive at GAV in this particular case. Hope this is clear to all of you. Are we, yeah, can we discuss one more illustration on this? Would you like to do this? Will take only 2 minutes, I think, if we take another example. So let's discuss. One second. Yeah, let's take this one. Municipal value 80,000. Fair rental value 95,000. Standard rent 70,000. Then let's take annual rent 73,000. Unrealized rent 5,000 and loss of vacancy 3,000. Yeah, now who is going to tell me the GAV in this case? Fast, please do it quickly. I want all of you to solve this. Will take only 2 minutes. आई रिमेम्बर माई स्टूडेंट्स की जितनी देर में मैं टर्म्स लिख रही होती हूँ या वैल्यूज लिख रही होती हूँ बोर्ड पे, उतनी देर में मेरे स्टूडेंट्स सॉल्व करके बता देते हैं. यस बच्चा. 67,000. एक बारी दोबारा कैलकुलेट करें बच्चा. GAV. I'm 65. Yeah. Bavleen, just check where have you made the mistake. See, first of all, what we have to do is that we have to compare these two. Higher value is taken 95,000. This is to be compared with the standard rent. So 95,000 and 70,000, lower of the two is taken. This will come 70,000. Now this 70,000 is to be compared with the 73,000. I think we can't. 73,000 minus 5,000. So how much will get? 73 minus 5, 68,000. Right? So higher of the two is to be taken. 68 and 70 में से higher of the two shall be 70,000 and then loss of vacancy minus 3,000. Sorry, Bavleen, your answer was correct. 67,000. Actually, I changed the figures in between, so that's why I probably made some mistake. Yeah, right? Got it? Yes? 67,000 is the GAV. All of you, please write in the chat box how much you are getting. Then we will move further. Okay, very good. 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 Any clarification required in this? No? Okay, so now let's move further. Up till now, we have learned the first step how we determine GAV. And please, my dear friends, अभी तक हम जो context with the let out house property. अभी self occupied और deemed to be let out और combination वाला अभी हमने डिस्कस करना है. तो let out house property में हमारा सबसे पहला स्टेप था डिटर्मिनेशन ऑफ GAV. अब कोई भी सिचुएशन हो, केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें GAV निकालना आ गया. Second step comes deduction of municipal taxes.
ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, तो इसकी दो ही कंडीशन होती हैं. पहली कंडीशन, इट मस्ट बी पेड, एंड सेकेंडली इट मस्ट बी पेड बाय द असेसी. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्सेस आपके करंट ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, या फिर फ्यूचर ईयर के हैं. बट अगर आपने अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, अगर आपने वो पे कर दिए हैं, so in that particular case you have to, you can claim that deduction, but condition being कि वो आपके एसएससी ने पेमेंट करी होनी चाहिए, टेनेंट ने नहीं करी होनी चाहिए, और पेमेंट होना चाहिए ड्यू बेसिस पे. अगर कोई भी आपको टैक्सेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. सो टू क्लेम द डिडक्शन on account of municipal taxes, these two condition needs to be satisfied. Then after reducing this particular value, there comes the NAV, which is known as net annual value. तो कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि क्या नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. तो yes, where the you have paid more taxes than the GAV, maybe probably for last several years, or there was some arrears or something, so the deduction can be claimed, right? Then after this there comes the deduction under section 24. When we talk about deductions under section 24, my friends, so the first deduction, section 24A, talks about the standard deduction, and this standard deduction is the 30% of NAV. तो जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है, उस नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्ट्रेट अवे आपको एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा. बट इसके अलावा कोई भी आपको चार्जेस दिए हुए हैं, बी इट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और लीज रेंट पेड और एनी रिपेयर्स और एनीथिंग, लीगल चार्जेस कुछ भी दिए हुए हैं, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. ग्राउंड रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस दी हुई है, तो किसी भी टर्मिनोलॉजी में आपके कोई और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस केस में उस पर्टिकुलर अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी. दिस लम सम 30% is being given under section 24A as a deduction from the net annual value, and which is exactly 30% of NAV. Then there comes the very important deduction 24B, which is called as deduction of interest on borrowed capital. ठीक है. अब इसमें borrowed capital का जो इंटरेस्ट है वो आपका, यस बच्चे, मैम एक बार ऊपर वाला समझा दोगे, नेटवर्क इशू हो गया था. Okay, no problem. Till now, we have learned how to determine the GAV, and when we calculate GAV, so it depends upon in the question that what all information related to house property are given. Municipal value given होगी, fair rental value given होगी, और आपका स्टैंडर्ड रेंट होगा. और जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, तो जो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर वैल्यू होगी वो आगे चली जाएगी. बीइंग लोअर वैल्यू, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ और जीरो है तो जीरो वैल्यू नहीं ली जाएगी. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, तो उस केस में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू की जो हायर वैल्यू है वो ही आपकी ईआरवी बन जाती है. तो ये नहीं होगा कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ तो आपने वहां नील लिख दिया, तो उस केस में आपका वो ईआरवी जीरो हो जाएगी. नो, नथिंग लाइक दैट. तो जीएवी आपका सिंपल केस हो, अनरियलाइज रेंट के साथ हो, लॉस ऑफ वैकेंसी के साथ हो, या दोनों के साथ हो, जो भी डिडक्शंस और केसेस के साथ हो, तो जीएवी हमें उसमें उसके अकॉर्डिंग डिटरमिन करनी है. जीएवी डिटरमिन करने के बाद हमें डिडक्शन अलाउड होती है on account of municipal taxes paid. So here we are just talking about the let out house property. तो उस केस में municipal taxes की डिडक्शन के लिए आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. Number one, the payment should be made in the relevant previous year. Number two, the assessee should have paid. तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये नहीं कि पेमेंट तो हुई है लेकिन पेमेंट टेनेंट ने करी है. नो, पेमेंट भी होनी चाहिए और वो एसएससी से होनी चाहिए. तो चाहे वो आपके प्रेजेंट प्रीवियस ईयर के लिए हो या उससे पिछले साल की आप पेमेंट कर रहे हो,
या आने वाले सालों की एडवांस में पेमेंट कर रहे हो. ऑल आर अलाउड बट द पेमेंट शुड बी मेड एंड वट एवर payment you have made, that payment is allowed for deduction. Then after that, after getting the NAV, the deduction under section 24 are allowed. 24 के अंदर सबसे पहली deduction आपकी होती है 24A, which is called as the standard deduction, and the standard deduction is 30% of the net annual value in irrespective कि आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है या नहीं किया, या आपका उससे ज्यादा इंकर हुआ है या कम इंकर हुआ है, 30% ऑफ एनएवी आपको यहाँ पर डिडक्शन जो है एनएवी की मिल जाएगी. अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल अमाउंट्स, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लीज रेंट, रिपेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी नाम में दिए हुए हैं, उनको आपने कुछ नहीं करना, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 30% एज इट इज डिडक्ट हो जाएगी. Then after that, the next deduction comes interest on borrowed capital, that is section 24B. जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, एंड अनदर इज इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. तो ये दोनों चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे. When we talk about outstanding in previous year, तो जिस भी डेट पे आपने लोन लिया, अगर आपकी उसकी रीपेमेंट नहीं हुई, ठीक है जी, रीपेमेंट नहीं है एंड द लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, या पार्शियल रीपेमेंट हुई है और कुछ लोन आउटस्टैंडिंग है, तो जितना भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर पे, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आउटस्टैंडिंग है, उसका जितना भी इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर डिडक्टेबल है, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट आपका प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, जितना आपने लोन लिया, अगर सपोज आपने 10 लाख लोन लिया, लेकिन 10 लाख में से 5 लाख आपने 2019 में वापस कर दिया और 2020 में आपका आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग 5 लाख है, तो 5 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा दैट इज अलाउड फॉर डिडक्शन. अगर पूरा का पूरा 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो उसके ऊपर एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको गिवन है, उसके ऊपर आपकी डिडक्शन इंटरेस्ट आपकी अलाउड हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट जरूरी नहीं है. तो दिस ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस. तो जो आपका जितना भी इंटरेस्ट ड्यू है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, उसकी आप डिडक्शन कम क्लेम कर सकते हो एवरी ईयर. उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अलाउड है. ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कुछ आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन. सो जो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा वो आपका डिडक्टेबल होगा. और अगर कोई अनपेड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे कोई आपकी पेनल्टी है और कोई आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट है, तो वो आपको डिडक्शन जो है उसकी अलाउड नहीं होगी. ठीक है जी. इसके बाद अगर कोई आपने उस पर्टिकुलर लोन को लेने के लिए कोई कमीशन या कोई अदर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या लोन को अरेंज करने के लिए कोई ब्रोकरेज या कोई शेयर दिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन. बट अगर हम सपोज स्विच ओवर करते हैं, we sometimes the rate of interest and we take big loans, so even 0.5% or 0.25% of interest makes a difference in the interest expenditure for overall period. तो अगर हमें नया लोन लिया है, we have taken a new loan to repay the existing loan, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगा. To repay existing loan, so this interest is allowed for deduction. तो सिर्फ हमें क्या परमिसिबल नहीं होगा कि कोई कमीशन, ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर दिया है, या कोई पेनल्टी है, या इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन. सो और इसके अंदर कोई हमारी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, कोई हमारी कंडीशन नहीं होती कि आप पे करोगे तभी होगा. तो जितना भी अमाउंट हमारा ड्यू या आउटस्टैंडिंग या वी से अक्रूड होता है, उसके ऊपर आप डिडक्शन ईयरली बेसिस पे इसमें क्लेम कर सकते हो, एवरी ईयर कर सकते हो. तो कोई लिमिट, कोई सीलिंग नहीं है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट. ठीक है, बट अब अगर आप देखोगे
कि अगर हम टैक्सेबिलिटी में अंडर सेक्शन 115 बीएसई के ऑप्शन लेते हैं तो उसमें यहाँ पे ये इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो वी हैव टू बी केयरफुल सो दैट पर्टिकुलर scheme will be more advantageous और बेनिफिशियल फॉर दोस्त जिनका कोई हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट नहीं है या जो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन क्लेम नहीं कर ले। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर सबको समझ में आ गया? यस? Can you write in the chat box if it is clear to Yes, all ma'am. of you? Okay, so can we move to the interest on pre-construction period? Chaliye. Okay, so now when we talk about interest of pre-construction period, so सबसे पहले हमें समझना है कि pre-construction period क्या होता है। तो अगर हम बात करें लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की, तो अगर आपने इवन 1 मंथ के लिए भी या एक स्मॉलर पीरियड के लिए भी हाउस को आपने लेट आउट कर दिया और आपकी उससे लेट आउट इनकम आ गई, तो उस केस के अंदर वो इनकम आपकी उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर काउंट हो जाएगी और वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये चीज तो हम सब समझते हैं, राइट? वी अंडरस्टैंड दिस मच। अब क्या होता है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड कि जब हमने लोन ले लिया, लोन टेकन, ठीक है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑनगोइंग है, द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन जब आपने लोन ले लिया तो उस टाइम पे ही आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया, मीटर डाउन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपका उसी टाइम स्टार्ट हो गया। पर जब हम बात करते हैं कि डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, तो हम कहते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो आप उसको ईयरली बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। ये भी बात हमने समझ ली। पर अब हम जब अगर हमारा वो वाला पीरियड जब हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं था पर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उस टाइम भी इंकर हो रहा था क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लोन ले लिया, तो उस लोन की डिडक्शन हम कैसे लेंगे? तो उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इसकी डिडक्शन का क्या रूल होता है? इसकी डिडक्शन हमें मिलती है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउड फॉर डिडक्शन in 5 equal installments starting from the previous year when the construction was completed. Construction or acquisition was completed. ठीक है जी? तो जिस साल में आपने लोन लिया, इफ यू हैव टेकन लोन इन से 1st of June 2016 और आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 31st of July 2019, तो आप कब से क्लेम कर सकते हो? पहले साल में 2019 और 2020। तो जो भी हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप क्लेम कर सकते हो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी किस साल में आएगी? जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, 2019-20 में। फिर उसके बाद 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23 एंड 24। अब 5 इंस्टॉलमेंट्स क्लेम हो गई ना, तो 23, 24 के बाद आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। दिस विल बी exhausted in the first 5 years, first 5 installment। तो जब 5 इंस्टॉलमेंट कवर होगी तो 24-25 में आपकी कोई इंस्टॉलमेंट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की नहीं आएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा कितना है। सेकेंडली, हमारी इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसकी इंस्टॉलमेंट फॉल कर रही है या नहीं कर रही, ऑलरेडी क्लेम तो नहीं हो चुकी, या इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। So all these things we have to understand. So now how to calculate the interest on pre-construction period? Step 1 is that we have to determine pre-construction period. Step 1,
determine pre-construction period. Step 2, calculate interest of pre-construction period. Step 3, divide it by 5. जो भी total interest आया उसको 5 equal installment पे लेना है. Step 4, check if installment is falling in relevant previous year, that is our 2020-21. If yes, claim under 24B. और if not falling तो खाली वो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके आप छोड़ देंगे. रीजन बीइंग कि अगर क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एग्जिस्ट करता है तो उसकी कैलकुलेशन के आपके पॉइंट्स होंगे. सो अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे डिटरमिन करते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स ऑन डेट ऑफ बोरोइंग, दैट इज व्हेन द लोन इज टेकन. ठीक है जी. एंड it ends on date of repayment or 31st of March immediately preceding the date of completion of construction, whichever is earlier. Right? So let's discuss 2-3 examples and try to determine the pre-construction period and calculate the interest. And with this, I think most of the basic concepts of the house property will get over. After this, we'll discuss in one class about self-occupied, deemed to be self-occupied, and the other practical questions. Right? Pre-construction period का meaning समझ में आ गया बेटा? अभी हम डिस्कस करेंगे with the help of the examples. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, could you please show step 4 one more time? Okay. Yeah, or I can reduce the size so it will come in one slide only. Right? When I write, it comes okay, but when I change the size, I see that lines are going here and there. Okay. Fine. So now let's take one example. A has taken a loan of rupees 10 lakh. I'm taking the 10 lakh figure because it's easy to calculate at the rate of 8% on 1st of June 2015 for the construction of a house. Construction completed on say same 31st of August 2018. Loan is still outstanding, right? So you have to calculate the amount of interest for deduction. Interest deduction to be claimed under section 24B for the relevant previous year.
आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर की जब हम 24B की डिडक्शन लेते हैं तो सबसे पहले तो हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर में अभी 10 का 10 लाख आउटस्टैंडिंग है. ठीक है जी, 8% पे है तो 80,000 आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ गया. अब हमने देखना है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपका फॉल करता है कि नहीं करता. तो सबसे पहले हमें डिटरमिन करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसकी डिडक्शन भी हमें मिल जाएगी. अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, लोन आपने लिया 1 जून 2015 को, कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हुई 31 अगस्त 2018. ठीक है, तो लोन अभी आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग है, कोई आपकी रीपेमेंट नहीं हुई. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका स्टार्ट हुआ 1 जून 2015 एंड एंड्स ऑन 31 March immediately preceding the date of completion of construction. Is it clear? 31 मार्च 2018 कैसे आया? 31 अगस्त 2018 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, लोन रीपे नहीं हुआ, तो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला जो 31 मार्च है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उसमें कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि पहला साल, जिस साल कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट होती है उस साल से आप पहले साल में आपकी डिडक्शन जो है इंटरेस्ट की क्लेम कर सकते हो. आउटस्टैंडिंग पे है, ईयरली बेसिस पे है, और इवन आपने पेमेंट नहीं करी, ड्यू है, तब भी आप उसको क्लेम कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर. तो इन दिस केस कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज दिस मच. सो यू कैन कैलकुलेट द मंथ्स. 2015 से 16 12 मंथ्स हो गए, 16 से 17 12 मंथ्स हो गए, and then after 17 there is जून, 1 जून तक हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. 10 मंथ्स 17 एंड 18 के. ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल एंड मई. ठीक है, सो दिस इज 24 एंड 10, 34 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट आ गया. सो नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 34 मंथ्स का कितना होगा? कैन यू प्लीज कैलकुलेट इट फॉर मी? फर्स्ट स्टेप था हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिटरमिन करना था. स्टेप 2 हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है वो डिटरमिन करना है. सो इफ यू सी, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जून 2015 से 31 मार्च 2018 तक है. तो इफ यू विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, सो इट विल कम 34. एंड कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेना. 15-16 में बच्चे आई थिंक जून में 12 मंथ्स नहीं आएंगे ना, और 15-16 में कम आएगा. अप्रैल एंड मई छोड़ के जून से दिस इज 10 मंथ्स, दिस विल कम 10 मंथ्स, तो 32 मंथ्स आएगा टोटल. प्लीज कैलकुलेट करो. आर यू पीपल हियर? यस बच्चा? यस मैम. हाँ, तो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ्स बनते हैं? 15-16 में, क्योंकि 1 जून से है तो हमारा 10 मंथ्स बना. 16-17 पूरा साल है, 12 मंथ्स बने. एंड 17-18 में 31 अगस्त को कंप्लीट हो गया. तो एक बार कैलकुलेट करो बच्चे. 18-19 में तो हम क्लेम ही कर लेंगे ना इंटरेस्ट. 2018-19 में तो इंटरेस्ट क्लेम कर लेंगे जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा प्रीवियस ईयर में. तो 17-18 के 10 मंथ्स बने हमारे. एक बार ही फिर से कैलकुलेट करो. आई एम मेकिंग सम मिस्टेक. आई हैव टेकन फ्रॉम जून 2015
say 31st of March 2016. So this is 10. फिर 1st April 2016 से 31st of March 2017 12 months. फिर 1st of April 2017 से 31st of March 2018. ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ 12 आएगा, तो आएगा 34 मंथ से. बट वो कैलकुलेशन ऊपर नीचे कर दी थी मैं, एक्चुअली 1 जून से जून तक ले रही थी उसमें. इज इट क्लियर? 34 आ रहा है? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी 34 मंथ्स आ रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? यस, नो? यस ओके, 34 मंथ्स आ रहा है, तो 34 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया आपने, कितना आया? कैन एनीवन टेल मी? 10 lakh into 8% into 34 by 12? Ma'am, it's 2,26,667. 2,26,667. Yes. So next step is that we have to divide it into 5 equal installments. तो इसको हम round off करें नहीं करें? This is divided by 5. Calculate करो amount. Yes, please. मैम 45,333. 45,333. And this first installment will be claimed in the year 2018-19. ठीक है जी. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लेम होगी 2018-19, सेकेंड 2019-20, थर्ड 2020-21. तो इसका मतलब हमारे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, तो 45,333 की डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. राइट? क्लियर है? सबसे पहले हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया, फिर चेक किया कि वो हमारे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. फॉर विद दिस पर्टिकुलर we can say concept, I will be sending you some problems, so you can practice GAV, you can practice the deduction of municipal taxes, and you can practice the interest deduction. Then we will start with the self-occupied house property. Okay? मैम एक बारी आज की वीडियो सेंड कर देना, नेटवर्क इशू की वजह से Sure. नहीं आया था. Sure. अभी समझ में आ गया जो अभी तक समझाया मैंने, मेनली इंटरेस्ट मैम बस ये लास्ट वाला नहीं आया, ये अब पीसीपी वाला. मैं दोबारा बता देती हूँ. वेट फॉर अ व्हाइल. भी मिल जाती है. अब ये इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, आपकी आवाज नहीं आ रही. राइट? यू हैव सम क्वेरी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी. आवाज नहीं आ रही है? वन सेकेंड. अब आ रही है. Yes, okay. Maybe wire got stuck. Okay. Let me share again.
जब हम इंटरेस्ट डिडक्शन की बात करते हैं तो जितना हमने लोन लिया होता है उस लोन के ऊपर जितना हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं होती। और जितना हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है अगर हमने पे नहीं किया तब भी अक्रूवल बेसिस पे हम ईयरली बेसिस पे उसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो जितना हमारा प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है दैट डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड। Secondly, the deduction of interest of pre-construction period can be claimed, and this deduction can be claimed in 5 equal installments starting from the year in which construction got completed. Starting from the year in which construction was completed. तो जैसे हमने अभी वाला केस डिस्कस किया उसके अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही थी 31 ऑफ अगस्त 2018 को। तो चाहे उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में हमारा हमने लास्ट में लोन लिया और इवन अगर हमारी फेब 2019 में भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही होती तब भी हम 2018 एंड 19 में उस प्रीवियस ईयर की एज अ प्रीवियस ईयर उस लोन के आउटस्टैंडिंग की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होता है कि जहां पे हमारा अभी हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एलिजिबल नहीं है इंटरेस्ट डिडक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर के लिए। तो उस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम क्लेम कर लेते हैं। और सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब होती है? जिस ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हुई है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिन करना होता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा कितना बड़ा है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को डिटरमिन करने के लिए द टोटल लेंथ ऑफ द पीरियड इज फ्रॉम डेट ऑफ बोरिंग टिल 31st ऑफ मार्च immediately preceding the date of completion of construction। ठीक है, तो अगर आपकी जिस भी डेट को, जैसे 31 ऑफ अगस्त 2018 को आपका कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन, तो उससे पिछली वाली जो डेट है 31 ऑफ मार्च 2018 उस टाइम पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका एंड हो जाएगा। और स्टार्ट कहाँ होगा? जिस डेट को आपने लोन लिया। तो दिस वन और डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सपोज करो कि आपकी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हुई 31 ऑफ अगस्त को, लेकिन आपने 1 जनवरी 2018 को सारा का सारा लोन रीपे कर दिया, बट आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट तो दिया ना। तो उस केस में 1 जून 2015 को आपने लोन लिया था और आपने 1 जनवरी 2018 को वो लोन रीपे कर दिया, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जून 2015 से 31 ऑफ दिसंबर 2017 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड्स ऑन 31 ऑफ मार्च immediately preceding the date of completion of construction अगर रीपेमेंट नहीं है, और डेट ऑफ रीपेमेंट whichever is earlier, तो वहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिटरमिन कर लिया, जितना भी लेंदी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आया। फॉर एग्जांपल इन द एग्जांपल वी हैव कवर्ड इट केम फॉर 34 मंथ्स, तो आपने 34 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर जो आपका इंटरेस्ट आया उसको आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लिया। और पहली इंस्टॉलमेंट आपकी कब होगी? जिस साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। तो 31 अगस्त 2018 को कंप्लीट हुई है, तो 2018-19 को आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस साल में आप क्लेम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1920, 2021, 21-22, 22-23। तो जब ये 5 इंस्टॉलमेंट में आपने ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, डिडक्शन क्लेम कर ली, तो उसके बाद आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay, so I will be sharing the recording of today's class, as well as we will be discussing more questions on this so that you will have complete practice of